Now, the showdown between Maharashtra Minister Nawab Malik and BJP's Devendra Fadnavis has escalated. Malik's son-in-law Sameer Khan has sent a legal notice to Devendra Fadnavis over his alleged defamatory comments. Here's more. रियाज भाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था? मुंबई में बम विस्फोट में हमारे मुंबई करों के चीथड़े उड़ते हुए हमने देखे। चीथड़े, ऐसे व्यक्ति के साथ आप व्यवहार करते हो, बिजनेस करते हो। It is a duel, the kind of which Maharashtra hasn't seen in recent years. A serving minister and a former chief minister firing at each other non-stop. A political shootout with no signs of truce. NCP leader Nawab Malik on Wednesday dropped his promised hydrogen bomb. He accused Devendra Fadnavis of shielding fake currency racket and alleged criminal Riaz Bhatti. Malik claimed Bhatti is linked to Dawood Ibrahim and Pakistan's ISI. देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया। जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया। आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया। आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया। Fadnavis's reaction to Malik was a cryptic tweet, a refusal to wrestle with pigs. Malik also released pictures of Riaz Bhatti with Fadnavis and other top leaders like Harshvardhan and Ravi Shankar Prasad to bolster his charges. The BJP paid back in kind, releasing pictures of Bhatti with NCP chief Sharad Pawar, Chief Minister Uddhav Thackeray, Aditya Thackeray and Congress leader Prithviraj Chavan. The fresh round of sniping comes a day after Devendra Fadnavis accused Nawab Malik's family of doing business with the underworld. He had released documents of a land purchase by Malik's son Faraz from 1993 Mumbai blast convict Shah Wali Khan and alleged Dawood aide Salim Patil at throwaway prices. नवाब मलिक जी 2003 में जब ये सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे, और क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दी? The exchange of fire between Malik and Fadnavis has embarrassed the political class of Maharashtra. State Congress chief Nana Patole described it as shameful. राज्य के मुख्यमंत्री नकली नोट बनाने वाले से संबंध रखते हैं, आतंकवादी से उनका संबंध है, ऐसा आरोप हुआ है, और आज राज्य के मंत्री उनका भी आतंकवादियों से संबंध है। इस तरह की जो बातें दोनों तरफ से की है, इससे महाराष्ट्र की प्रतिमा को बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है। Nawab Malik's son-in-law Sameer Khan, who was arrested and got bail in a drugs case earlier, sued Fadnavis for defamation, claiming no drug was seized from him. His wife and Nawab Malik's daughter Nilofer said 5 crore rupees has been sought as damages. अगर वे क्षमा नहीं मांगते तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा, क्रिमिनल और सिविल सूट फाइल करने का काम हमारी बिटिया करेगी। There is allegations again and again, and you're defaming me on a national television along with my family. So I don't think it's the right way to do things. You know, politics is separate. We are individuals. You cannot do, and you should get your fact correct. I have given a notice of 15 days that you please come ahead and say sorry. If not, then my legal team will take it further as per actuals. Bureau Report, India Today. Let's go straight across to Nawab Malik speaking right now. नहीं अपना है क्या? अपना लाइव वाला है? ठीक है। पार्टी वाला अपना चालू हुआ क्या? सात का यादी
7 का यादी चाहिए ना। यादी चाहिए ना 7 FIR का। 7 Is FIR का Devendra यादी का है। Fadnavis escalating? We're just awaiting Nawab Malik. As you can see, he's going to start speaking any minute. Remember, Malik's son-in-law, Sameer Khan, has sent a legal notice to Devendra Fadnavis over his alleged defamatory comments. And we're waiting now to hear back from Nawab Malik on this as well. And he's all mic'd up, the Maharashtra minister, just waiting, of course, to see that what he has to say with regards to this developing issue right now. मी आपल्याला क्षमा मागून हिंदीमध्ये पहिले बोलणार आहे, नंतर मराठीत बोलू, कारण देशभरी बातमी जाना हे गरजेचं आहे. सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं. और आज ही अभी हम लोग 2 बजे यहाँ पे दिवाली का फराड़ खाने के लिए आपने मुझे बुलाया, और सिर्फ बिना फराड़ खाए मैं दूसरे कार्यक्रम में चला गया. गेट से निकलते समय कुछ पत्रकारों ने जानकारी मुझे दी कि वक्फ बोर्ड के कार्यालय पे छापे पड़े हैं. वक्फ बोर्ड के कार्यालय पे छापे नहीं पड़े. जो हमें उड़ती उड़ती खबरें टेलीविजन के माध्यम से आई हैं कि 7 जगह वक्फ को रिलेटेड कोई लोगों के दफ्तर पे या घरों पे छापे पड़े हैं, ये जानकारी उड़ती उड़ती हमें आई है. जो कार्रवाई हो रही है वो पूना का एक ट्रस्ट है, ताबूत इनाम एंडोमेंट ट्रस्ट, मुड़सी, जिला पुणे. ये वक्फ बोर्ड के अंदर ताबूत इनाम एंडोमेंट ट्रस्ट, तालुका मुड़सी, एंडोमेंट ट्रस्ट, तालुका मुड़सी, पुणे डिस्ट्रिक्ट. जो वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर है MSBW/PUN 131/2009 19/5/2009 को ये चैरिटी कमिश्नर के पास से वक्फ बोर्ड के पास ट्रस्ट ट्रांसफर हुआ डीम्ड रजिस्ट्रेशन से. वक्फ एक्ट 1995 महाराष्ट्र में जब लोकशाही आघाड़ी की सरकार बनी उस समय वक्फ एक्ट को लागू किया गया, और वक्फ एक्ट लागू होने से जो भी चैरिटी कमिश्नर के पास संस्थाएं रजिस्टर थी उसका रजिस्ट्रेशन डीम रजिस्टर करने का निर्णय चैरिटी कमिश्नर ने भी लिया, और तत्कालीन सरकार में उस वक्त मैं राज्य मंत्री था, हमने भी मिलाकर वक्फ एक्ट 1995 हमने लागू कराया. और जो छापेमारी हो रही है जिसकी खबरें आ रही हैं, कुछ चैनल वालों ने चला दिया कि नवाब मलिक के घर तक ईडी पहुंच जाएगी. बता के आएंगे तो स्वागत भी करेंगे, लेकिन जो छापेमारी हो रही है ताबूत इनाम एंडोमेंट ट्रस्ट को लेकर, जिसमें पूना में MIDC ने 5 हेक्टर 51 आर जमीन एक्विजिशन करके लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के पास पैसे जमा किए,
और लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ने श्री इम्तियाज हुसैन शेख और अन्य जो ट्रस्टी अपने आप को क्लेम करते थे उनको 7 करोड़ के करीब 7 करोड़ 76 लाख 98,250 रुपये उनको एक्विजिशन के पैसे दे दिए। लेकिन कागज से जो जानकारी है टोटल 9 करोड़ 64,42,500 रुपया ये एक्विजिशन का जिला अधिकारी के पास पैसे जमे हुए थे। जो एक बनावट कागज पत्र के आधार पर 30/12/2020 का कागज इस्तेमाल करके 7 करोड़ 76,98,250 रुपये ये उन्होंने अपने अकाउंट में लेने का काम किया। उसके बाद वक्फ बोर्ड को जानकारी मिलने के बाद कि जो एनओसी उन्होंने में दाखिल की है, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं श्री अनीश शेख, उन्होंने जो पूना डिवीजन के ज्वाइंट सीईओ हैं